we are studying this Boolean logic in our computer science, though it is a branch of mathematics, Boolean algebra. But we are studying because this Boolean algebra also deals with only two symbols, which are 0 and 1. And we all know that our computer system also recognizes only two symbols, which are 0 and 1. So this logic actually works with only 0 or 1, where 0 indicates a false value and 1 indicates a true. ठीक है, तो 0 और 1 यहाँ पे इसका मतलब ट्रू और फॉल्स से है केवल. Now what we have, एक मिनट, just let me set something. सुन भाई, आर्ट ले ले, कौन सजेस्ट कर रहा है? तो लिसन, देखिए, so here whenever we talk about a variable, say x, then x will either a 0 or a 1, and 0 will represent a false value, whereas 1 a true value. We have some operations जो हमारे boolean operations हैं हमारे पास. So the first operation is not. Can you see it? Not, not. Hello, are you getting it? Anybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So not simply says if x is 0, then not x will be 1. And if x is 1, then not x will be 0. So not operation just invert the input. If input is 0, Yes, sir. You will get 1 as output. If input is 1, you will get 0 as output. Correct? Yes, So sir. another operation that we have is AND operation. So not operation is also indicated by x dash or x bar. Now about AND, this is logical multiplication, AND operation. Suppose we have two values x and y, and we say x and y. So if we have two variables and both variables can have either a 0 or a 1, how many possible combinations can be made? Sir. If we have two variables x and y both can have either a 0 or a 1, then how many combinations are possible? Anybody? 4. 4. So देखिए, combinations can be either 0 0, 0 1, 1 0 or
1 1. Huh? Now x and y says if both inputs are 0, you will get a 0. If any of the input is 0, you will get a 0. If all the inputs are 1, then only you are going to get a 1. So AND operation will result in a true value only when all the inputs are true. So AND का काम आपकी समझ में आ गया. If all the inputs are true, Yes, sir. only then you will get true. Otherwise, in all other cases, you will get a 0. Fine. So not Yes, sir. not or AND operation के बाद में we will talk about. सर आप रिकॉर्ड करके भेजोगे? हाँ भेजेंगे. सर ग्रुप में आप रिकॉर्ड करके भेजोगे ना? हाँ भेज देंगे. Okay. So another operation is OR. OR does what? What we mean by OR? This is logical addition. Logical addition, say if we have two variables x and y and we need x or y, again 4 possible combinations. Fine. So it will give you the result as this one. So in case of a OR, you will get result true if any of the inputs is true. You will get a false only when all the inputs are false. False. So in case when all the inputs are false, then only you are going to get a false result in case of OR. देखिए नॉट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इस तरह x बार या x डैश, whereas and is represented by a dot, x dot y, and an OR operation is indicated by plus x plus y. और का मतलब प्लस ये डॉट और ये बार. Now these three operations are clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now we will learn how to make truth tables for Boolean expressions. We will say making truth tables. So what is it? Truth table. Truth table क्या होती है? So a truth table is a table showing all possible input and their corresponding output combinations. तो अगर हम देखें कि जितने भी इनपुट्स हमारे पास हैं उन सारे इनपुट्स के और उनसे जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है उनके कॉम्बिनेशंस बना लें हम, तो दैट टेबल विल बी नॉन एज अ ट्रुथ टेबल. फॉर एग्जांपल say suppose if any Boolean expression f is given as x bar y plus x y bar. Suppose this is any Boolean expression and we are asked to x dash है ना? x dash y plus x y dash. Okay sir. So देखिए if we are asked to form a truth table for this one, then what we need, we have two variables x and y. So we wrote x and y. These are two inputs हमारे पास.
ठीक है। यस सर। 4 possible combinations 0 1 1 0 1 1 बिकॉज x और y दो वेरिएबल्स के 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमें क्या जरूरत है, x बार की जरूरत है और y बार की भी जरूरत है। तो बार मींस वी नीड एन नॉट ऑपरेटर। नॉट। यस तो सर। हम एक कॉलम बनाते हैं x बार और एक बनाते हैं y बार। और वाई वाह। अब बताइए x बार वाले कॉलम में क्या वैल्यूज आएंगी, जरा कोई बता सकता है? 1। पहले क्या आएगी? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। x बार वाले कॉलम में क्या वैल्यूज सर आएंगी? 1 आएगा। नहीं, देयर विल बी 4 वैल्यूज 1। ना, 4 यस वैल्यूज सर। जो क्या क्या आएंगी बताइए। सब फर्स्ट 1 आएगा, फिर 1, फिर हाँ 0 हाँ, फिर 0। और 0। तो बिकॉज x is 0 x bar will be 1, x is 0 x bar is 1, x is 1 x bar is 0, x is 1 x bar is 0। ठीक है। Now similarly we have y bar is 1 0 1 0। 1 0 1। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस सर। अब नाउ व्हाट वी नीड x बार y। तो हमने एक कॉलम बनाया x बार y, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू x बार एंड y, दीज टू कॉलम्स। तो आप देखिए 0 एंड 1, तो x बार y का मतलब है x बार डॉट y। तो Yes, sir. which operation is needed between x bar and y? Which operation? And Sir, and we know that and gives you 1 only when all inputs are 1। तो देखिए 0 yes sir 0 और 1 will give you 0, 0 1 dot 1 will give you 1, 0 1 so 0 0 0 0 zero. then what we have x y bar। x y bar means these two columns, एक ये और एक ये। तो अब देखिए इसमें 0.1 0 0.0 0 1.1 1 and 1.0। सही है? yes sir Now the final expression is x bar y plus x y bar। तो ये मैं लिखा x bar y plus x y bar। Now you can see which operation is required, or operation is required। सर आपकी बीच बीच में सर आवाज और ऑडियो दोनों रुक जाती है। आवाज और ऑडियो तो एक ही बात है बेटा। नहीं, आवाज और वीडियो सर अच्छा अच्छा, दोनों रुक जाती है। ऑडियो वीडियो वो बीच बीच हाँ में ऑडियो वीडियो। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुक जाती है बेटा, क्या करें अभी प्रॉब्लम। अच्छा सर अवश्य। अब देखिए नाउ वी नीड टू add these two x bar y and x y bar। It means an or operation is required, and or gives you true when any of the inputs is true। तो यहाँ देखिए 0 plus 0 will give you 0, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1 and 0 plus 0। So this is the final result, this is the final expression for your expression x bar y plus x y bar। So in this manner we can draw a truth table for any boolean expression। सर अब इसे लिखेंगे कैसे सर, ऐसे ही छोड़ दें? हाँ बस बस बस, you have to draw a truth table, draw like this, correct? Now Yes, if sir. Yes, sir. now if I give you an expression, then you just tell me the final column means final column का मतलब जैसे ये final column है, ठीक है? मुझे केवल इस फाइनल कॉलम का रिजल्ट आप बताएंगे कि क्या आ रहा है। जैसे अभी मैं पूछूं कि फाइनल कॉलम का रिजल्ट क्या है, तो आपने बताना है 0 1 1 0। ठीक है? Yes, sir. यस सर मैं ऐसे आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, उसका ट्रुथ टेबल बनाइए। Yes, sir. अब देखो मैं अवश्य, तो बहुत ही सरल है।
आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं, f इक्वल्स टू a बार b बार प्लस a b। चलो इसके लिए बताओ, a बार b बार प्लस सर एक सब ब्लर हो रहा है सर, दिख नहीं रहा थोड़ा। ये लिखा है मैंने f इक्वल्स टू a बार b बार प्लस a b। ए बार बी बार प्लस ए बी। हाँ, इसके लिए यू हैव टू टेल मी द फाइनल कॉलम वैल्यूज। और जो भी बताएगा उसको पहले अपना नाम बताना है, फिर मेरे को बताना है, ठीक है? Have you done it? तो यही समझ में नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया? तो ये ए और बी की वैल्यू क्या है? देखो, I gave you f equals to a bar b bar plus ab, correct? So what do you need? Two columns means for a and b, because you have two inputs. You need a bar, you need b bar. सर 1 प्लस 1 को सर वो लिखे 1 0 या सिर्फ 1? बेटा 1 प्लस 1 दिस इज लॉजिकल एडिशन, ये बाइनरी एडिशन नहीं है। यहाँ पे नंबर सेट नहीं किया जा रहा। सर एक बार बोलूं? 1 का मतलब ट्रू है, यहाँ पे 1 का मतलब वो न्यूमेरिक 1 नहीं है। तो ट्रू 1 0 0 1। हाँ, 1 0 सर 0 आंसर 1। आएगा 1001। 1 0 0 1 आ रहा है सर। यस सर 1001 आ रहा है। भाई मुझे गलत लग रहा है थोड़ा। 1001 जो सर बता देंगे। यस सर। 1 जिनका आ रहा है वो सही है आंसर। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया आपका 1 1 0 0, ये हो गया 1 0 1 0, ये हो गया 1 0 0 0 0 ये हो गया 0 0 0 1 और ये हो गया 1 0 0 1। सही है सर। अरे स्टार्टिंग में ए वाली रो में हम 0 0 1 1 ही लेते हैं, तो क्लास थोड़ा हाँ, लेट ज्वाइन हुई थी तुम इसलिए वो लेट समझ हो में गए नहीं आया। हिमांशु। वो बताना। देखो ऐसा है ना, ये जो कॉम्बिनेशन बनाए ना चार, these combinations are in a sequence। क्या आपको अगर मैं ये कहूं कि 0 0 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना वैल्यू बोलते हैं तो क्या बताएंगे आप? बताइए सर ऑडियो वीडियो रुक गई। हाँ, 0 0 को क्या बोलते हैं ये बताओ। किस में कौन से सिस्टम में? बाइनरी सिस्टम में इफ आई आस्क यू व्हाट इज 0 0 इक्विवेलेंट टू, तो क्या बोलोगे आप? तो वीडियो और ऑडियो रुक गई। 0 धीरज रखो पुत्र। 0 0 को क्या बोलोगे आप बाइनरी में? 0 0 बोलोगे ना। और 0 1 को 1 1 1 0 को 1 अरे 1 1 0 1 0 इसको 2 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। 2 1 0 2 है और 1 1। 3। 3। तो देखिए ये एक सीक्वेंस है ना, कॉम्बिनेशंस का सीक्वेंस मैंने बनाया हुआ है 0 1 2 3। वैसे तो आप कॉम्बिनेशन यस सर। किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ये एक सीक्वेंस है 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी 0 1 2 3। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं।
हाँ आप कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आउटपुट में, ये आउटपुट में इसको 0 0 कॉम्बिनेशन, तुम वत्स लेट हो। आउटपुट में जो 1 आ रहा है वो भाई ज्यादा 0 मुझसे 0 जल्दी क्यों बोल रहा है? महाभारत देख ली थी से। और एक 1 आ रहा है वो 1 1 कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं इनपुट के, 0 0 और 1 1, इनके लिए आउटपुट हमारा 1 1 आ रहा है। तो अब आप चाहे किसी भी सीक्वेंस में लिखें, आना चाहिए, करेक्ट। Okay, now let us see if we have three variables a, b and c, कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे बताइए? फॉर a, b and c, 3 वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? एनीबॉडी? 9 बनेंगे क्या? 9 बनेंगे सर। 9 नहीं बनेंगे, और कोई बताइए? 8 कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड। देखिए कॉम्बिनेशन Yes, sir. का सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनते हैं। n। यस सर। तो n हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स है। इफ वी हैव 3 इनपुट्स 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 8। इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स ओनली a b, then 2 square is 4, 4 combinations can be formed. And if we have 4 variables, then how many combinations are possible? 16। 16। ओके, तो देखिए, और कॉम्बिनेशन बनाने का भी तरीका बहुत इजी है, आपको मैं बताऊं। हिमांशु तुमने अपना नाम बदल लिया। जैसे जैसे हमने कहा कि वो 8 combinations are possible, so what is the half value of 8? What is the half value of 8? Hello? हेलो। यस सर। What is the यस half सर। value of 8? 8 का आधा कितना होता है बेटा? 4। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, 4 0 रखना है पहले और 4 1, सही है। अब 4 का आधा कितना होता है? 4 का आधा पता है? 2। 2 2 तो अब 2 0 और 2 1, 2 का आधा 1 1। 1 0 1 1। सर ये तो बहुत खतरनाक ट्रिक है। खतरनाक ट्रिक नहीं है, इजी ट्रिक है। सर सर एक ये बार तो फिर बताना। टेल से भी हो जाएगा, बहुत इजी है। ये आपने प्रोबेबिलिटी 10th में होगी, ट्रू वो हेड और Yes, sir. यस सर, लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी में था। हाँ, हेड और टेल वाले जैसे कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए। इससे सर सोचना Yes. नहीं पड़ेगा लिखते टाइम थोड़ा भी। तो हेड और टेल का वैसे कॉम्बिनेशन वाला। वैसे हाँ भाई। इन कॉम्बिनेशंस का जो मतलब है ना, वो ये है कि ये बाइनरी में इस वैल्यू को 0 बोलते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 और इसको 7। आपको मालूम है 1 1 1 को 7 ही बोलते हैं ना बाइनरी में, 1 1 0 को 6 बोलते हैं, 1 0 1 को 5 बोलते हैं, करेक्ट। यस सर। तो अब मैं एक एक्सप्रेशन दूं आपको, तो उसके लिए ट्रुथ टेबल बना सकते हैं आप? यस यस सर। सर बना सकते हैं। केवल यस सर बना सकते। फाइनल वाले कॉलम का मैं रिजल्ट पूछूंगा आपसे, वो बताना है मेरे को, ठीक है। एक्सप्रेशन है ये, ओके सर। f इक्वल्स टू a बार b c प्लस a b बार c बार प्लस a b बार c बार। सर एक अरे, बार रिपीट कर देना। आप बोलना सर, आप बोलना है। a बार b c यस सर। प्लस a b बार c
प्लस ए बी बार सी बार। समझ में आ गई? यस सर। अब मैं सीधा एफ वाले कॉलम यानी फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगी उसका मुझे रिजल्ट बता दीजिए क्या आएगा। कहाँ 0 कहाँ 1? डन इट। हो गया? अभी ये सर आंसर लिखिए। बताओ। सर 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 यही है। 0 0 1 1 1 0 यही है। हेलो, यस सर यही आ रहा है। यस सर ओके। यस सर यही आ रहा है। ये आपका आंसर सही है। और देखो सीधा चेक करने का एक मैं सर तरीका यही आ रहा है। आपको देखिए सर यही है, बिल्कुल करेक्ट है। इस एक्सप्रेशन में ये देखिए ए बार बी सी है यस यस सर। सर। तो जिस पे बार लिखा है उसको तो 0 से रिप्रेजेंट करिए और जिस पे बार नहीं है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अब Yes, देखिए sir. ए बार बी सी का मतलब है ए बार पे 0 ए बार लिखा हुआ है तो इसको 0 और बाकी दोनों को 1 0 1 1। 1 इसका क्या बना ए बी बार सी का बताओ। सर 1 0 1 1 0 1 और इसका क्या बना 1 0 0। तो आपको ये तीन कॉम्बिनेशन ही देखनी है, इन पर 1 रखना है बस। तो देखो आपने 0 1 1 इस पे 1 रखा, ये वाला हो गया। फिर 1 0 1 इस पे 1 रखा, ये वाला हो गया। और 1 0 0 इस पे रखा तो ये वाला हो गया। बस इन तीन जगह पे 1 आपने रखना है, बाकी सब जगह पे क्या रख दिया 0 है। सरल तरीका है ये आपको यस सही है सर। सर। समझ में आ गई बात? यस सर। बिकॉज अगर आप वैसे करेंगे ना, ये चेक करने के लिए आपके सही तरीका है, लेकिन अगर अरे हाँ हाँ सही कह रहे हैं। पेपर में ये लिखने को आ सर रहा ये है कि शॉर्ट है। आपको ट्रुथ टेबल बनानी है तो आपको पूरा मेथड करना पड़ेगा। आपको ए बी सी ए बार बी बार सी बार अगर जरूरत है तो निकालने पड़ेंगे। उस सर मेथड में कितने नंबर का प्रॉब्लम आता ये है? है उस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं भी किसी कॉलम में एक आध में गलती हो जाती है ना, तो वो फिर पूरा रिजल्ट को इफेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ से आप सीधा रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, इन तीन प्लेसेस पर ही आएगा 1, बाकी पे नहीं आएगा। सही है? समझ में आ रहा है बात तब आपको? तब बहुत अच्छी ट्रिक है सर। हाँ सर ये कितने नंबर का आता है?
ट्रुथ टेबल बनाने को आती है तो कम से कम 2 नंबर का तो आता ही है क्वेश्चन ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। समझ में आ गई? तो 2 से कम में Yes, है तो sir. डायरेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। चार वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन बना लेंगे अब आप, यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, अगर मैं ऐसे दे दूं आपको, मुझे चलिए ये एक्सप्रेशन है f इक्वल टू ए बी बार प्लस बी बार सी। इसके लिए ट्रुथ टेबल का फाइनल कॉलम बता सकते हैं, कहाँ का मान आएगा, कहाँ जीरो आएगा? देखो बताओ मुझे। सर बता सकते हैं सर? पहले तो ये बताओ कि कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? सर यहाँ 2 हैं। 3 है सर। 3 है, ए बी और 3 है ए बी सी। अच्छा सी भी है पर दिख नहीं रहा सर। ये लिखा है ना ए बी बार प्लस बी बार सी, मैंने बोला तो था। तो सर दिख ही नहीं रहा, ब्लर हो रहा है सर। हाँ, ए बी बार प्लस बी बार सी है और इसको 3 वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन तो वही बनेंगे 8। ये 8 कॉम्बिनेशन हो गए। हाँ सर। अब आप सीधा फाइनल कॉलम कैसे लिख सकते हैं इसमें बताओ। देखो हम मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। पहला है आपका ए बी बार, सही है? यस सर। यस सर। तो ए को तो 1 लिखोगे, बी बार को 0 लिखोगे। यस सर। अब आप ए और बी वाले कॉलम में देखो केवल कि ए और बी की वैल्यू 1 0 कहां पर है सीक्वेंस में, तो आपको मिलेंगे ये 2। यस सर। यहाँ पर 1 0 है ए और बी की वैल्यू, तो इन दोनों जगह पर 1 रख दीजिए, ठीक है? यस सर गया सर। अच्छा, बी बार सी अगर देखोगे तो बी बार सी का मतलब 0 1। अब बी और सी वाले कॉलम में देखो बी सी की वैल्यू 0 1 कहाँ है? एक तो यहाँ है, यस सर। एक यहाँ है, बस ये 2 जगह। यस सर। 2 जगह है ना, तो एक तो इस जगह 1 रख देंगे और इस जगह पहले से ही 1 है हमारा, तो पहले से ही 1 है तो छोड़ दीजिए उसको और बाकी सब जगह पे 0 रख दीजिए। समझ में आ गई? अब जिन्होंने अगर आ गई सर। कोई सर सर एक बार हाँ बोलो। एक बार और बताना सर ये मतलब। देखो ए बी बार है ना, तो ए बी बार को 1 0 लिख लिया ऐसे। अब ए बी वाले कॉलम में ये देखो कि 1 0 वैल्यू ए बी कहां पर है इस कॉम्बिनेशन में, तो ये दो कॉम्बिनेशन है 1 0 वाले। यस सर। ऐसे बी बार सी को हमने 0 1 लिखा, तो बी और सी वाले कॉलम में 0 1 कॉम्बिनेशन 2 है, 0 1 और 0 1। यस सर। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में 1 रख दिया, इसमें 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, बाकी सब पे 0 रख दिया। अब आप अगर इसको वैसे भी बनाएंगे ना तो यही रिजल्ट आएगा। ये मैंने आपको सर इसमें 2 थे ना। हाँ समझ गए सर, आगे क्लियर हो। यहाँ पे ये 0 1 वाला कॉम्बिनेशन है और 1 0 वाला जो कॉम्बिनेशन है, इनमें दोनों में एक जैसे वहाँ पे एडिशन थोड़ी हो रहा है, उसका मतलब ट्रू है। हाँ समझ गए सर। ठीक है ना, समझ गए? Now I think you all have an idea how to draw a truth table for any Boolean expression. यस सर। है ना? यस सर। And you can draw a truth table for any Boolean expression now. I hope so. ठीक है? यस सर। And यस सर।
Since the time is running out, only 1 minute is left. So I am just finishing this class today. Okay. Have a nice day. Well done. ओके Okay, सर sir. So सर day तो रिकॉर्ड गया